بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول ہے یہ اور ہمارا ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہوا ہے کورس، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی تیاری اچھی سی کر چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ اپنا ورک بک اور ہوم ورک کمپلیٹ کر لیجیے کیونکہ اس سے بہت مدد ملتی ہے اس سے. اچھا جی، اب آپ نے خود کو میوٹ اور ان میوٹ کوئکلی کرنا ہے کیونکہ جب ہم آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے جلدی اس کا آنسر کر کے جلدی خود کو میوٹ کرنا ہے تاکہ شور شرابہ نہ ہو اور ہم آسانی سے اس مختصر سے لمحات میں اچھے سے اچھے ٹائم پر دہرائی اپنی کمپلیٹ کر لیں. آئیے ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کورس کا مختصر سا تعارف. قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. ہم نے اشاروں کی مدد سے قرآن کے الحمدللہ 50% الفاظ سیکھے، اور اسی طرح سے ہم آتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف. جی، ہم نے سیکھا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. قرآن سمجھنا کیسے آسان ہوگا؟ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے اور نماز سمجھ میں آ جائے. نماز بھی اس صورت میں سمجھ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق تب قائم ہوگا جب ہم نماز میں اور قرآن پاک میں جو آیات اور جو سورہ مبارک، جو ذکر، جو اذکار پڑھتے ہیں ان کی ہمیں سمجھ آئے گی، اور نماز بھی اسی طرح سے مؤثر ہوگی. ہم زیادہ خشوع اور خضوع اور شوق کے ساتھ نماز پڑھ پائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا کیسے مضبوط ہوگا، قرآن کو زندگی میں ہم لائیں گے کیسے. یاد رکھیے قرآن مجید صرف سالانہ ختموں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کو اپنی زندگی میں لائیے، اور قرآن کو زندگی میں لانے کا بہترین طریقہ ہم نے اس کورس کے ذریعے سیکھا. اور جب ہمارا نماز کے ساتھ تعلق اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی بہترین ہوں گے، ہمارے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے. اور ان تمام مقاصد میں ایک جو بہترین مقصد ہمیں حاصل ہو گیا وہ عربی بول چال کے ہم نے 100 جملے بنانا سیکھے. اب آپ لوگ خود کو ان میوٹ کر کے میرے ساتھ کام کریں گے. یہ میں جب پڑھوں گی صورتیں تو آپ ان کی ٹرانسلیشن میرے ساتھ ساتھ کریں گے. ہم نے نماز کے جو عام الفاظ سیکھے اس میں، اور اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ العصر، النصر، الکافرون، الاخلاص، الفلق، الناس، اور اسی طرح سے ہم نے سیکھے آذان کے کلمات، دعائیں سیکھی، وضو سے پہلے کی، وضو سے بعد کی، رکوع و سجود کی تسبیحات سیکھی، تشہد، درود شریف، اور ہم نے ایک اضافی دعا بھی سیکھی، ربنا آتنا. اب پلیز خود کو سب انمیوٹ کر لیجیے. جی، اب میں پڑھوں کہ آپ اس کے ٹرانسلیشن کرتے جائیے ساتھ ساتھ. سبحانکا، پاک ہے تو، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، وبحمدکا، اور تعریف ہے تعریف ہے آپ کے لیے. اب رکیے، اب اس کے ٹکڑے کیجیے وبحمدکا کے. چار ٹکڑے، ماشاءاللہ. اب اگلا لفظ ہے تبارکا. اس کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے، جیسے مبارک ایسے ہی تبارک پورا لفظ ہے. تبارکا یہ پورا لفظ ہے، وا علیحدہ ہے، تبارکا اس کے ٹکڑے نہیں کرنے. اب اسم کا ٹکڑے کیجیے. تیرا نام. ٹھیک ہے. وتعالی ترجمہ کرتے جائیے. وتعالی بلند بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی کا اور جد. بزرگی، بزرگی. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ بالکل وہی ہے کا. ولا الہ اس کے ٹکڑے کیجیے. اور نہیں کوئی معبود.
कितने टुकड़े में? तीन वाला जी माशाल्लाह। खैरु, इसका तर्जुमा कीजिए। आपके सिवा तेरे जी माशाल्लाह। हाँ मैम ये एक बार वबी हमदी का टुकड़ों का बता दें, 4 होंगे इनके? जी जी जी, वा बी हमदी और का। और जैसे हमने का ही होने तबारुक वाला पढ़ा है है, जी, इसके टुकड़े नहीं करेंगे। तबारुक में भी तो फिर हम 2 करेंगे ना, का जो आ रहा है ज़मीर। देखिए ये ज़मीर वाला, ये वो वाला का नहीं है। जैसे हम मुबारक कहते हैं, हम सिर्फ मुबारक तो नहीं कहते, मुबारक, ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है, थैंक ये यू। वैसे ही है वा तबारक, ठीक है, वा अलग है और तबारक, इसके हमने टुकड़े नहीं करने, ठीक है? आगे बढ़े। जी मैम। जी बारक से मतलब बरकत वाला है। जी, आप देखिए सूरह फातिहा। जी जी जी, आप जरा खुद को म्यूट कीजिए। हमने तअव्वुज़, तस्मिया और सूरह फातिहा, इनमें 12 आदात सीखी थी। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ। बिल्लाह के टुकड़े कीजिए। बा और बी और अल्लाह, बी और अल्लाह, दो, ठीक ठीक है। हाँ, और हमने एक बड़ी अच्छी आदत सीखी थी, पहली आदत, वो बताइएगा। हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का बिस्मिल्लाह पढ़ लेते जिक्र, बिस्मिल्लाह पढ़ना। मैंने अपने आप को गैर में अपने आप को गैर महफूज समझना और अल्लाह से पनाह में आना, अल्लाह से शैतान की पनाह में आ जाना, अल्लाह की पनाह में आना। हिफाजत, शैतान से पनाह। जी, आसान जो है वो इसका है, शैतान से अपनी हिफाजत यानी सेफ्टी फर्स्ट। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे हमने एक बेहतरीन आदत सीखी थी, ये बता सकते हैं आप? हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लें। जी माशाल्लाह। अल्हम्द, जी अल्हम्द के 2 तमाम मानी, तारीफें, तारीफ और शुक्र। तमाम तारीफ और शुक्र और शुक्र। जी लिल्लाह की टुकड़ी कीजिए। और अल्लाह के लिए ठीक है, अल्लाह के लिए। जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इससे हमने एक आदत भी सीखी थी। एक हमने सीखी आदत अल्हम्द से और एक हमने सीखी आलमीन से। पहले अल्हम्द यानी कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, और आलमीन से हमने सीखा कि हम इल्म हासिल करें, कायनात पर तमाम जहान वाले। जी जी बिल्कुल, इसमें इल्म का भी जिक्र आ गया ना कि तमाम जहानों में जो चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की, हम गौर फिक्र करें, ठीक है। अर्रहमान रहीम, एक आदत हमने यहाँ से सीखी, बता सकते हैं? मतलब ऐसी जात जो मुसलसल बारिश कर रही हो रहमत अल्लाह की सिफत है। रहीम जो है वो इंसानों की भी सिफत है कि वो रहम करने वाले हैं, जो अल्लाह पाक ने इंसानों में भी रखी। जी जी, रहम करने की आदत सीखी, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाता है जो रहम करते हैं। मालिक यौमिद्दीन। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, इसमें से हमने कौन सी आदत सीखी थी? आखिरत के बारे में। आखिरत और मौत की तैयारी। मौत, बिल्कुल। अपने अपने हर अमल को करने से पहले आखिरत को अपने ज़हन में रखिए, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, सिर्फ हर काम में इबादत आज हम आपकी इबादत करते हैं और आपकी मदद चाहते हैं। मदद चाहते हैं। हाँ जी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस एक आदत हमने यहाँ से सीखी। सीधे रास्ते पर चलना, सीधे रास्ते पे चलना। माशाल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अब इसमें से इनाम की बात होगी। जी जी नेक लोगों का रास्ता नक्की करना। जी जी, अब इनाम, जी साथ साथ प्लीज म्यूट कीजिएगा। जी, इनाम जिन लोगों पर हुआ उनके बारे में बताइएगा, किन लोगों पर अल्लाह ताला का अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, मग़दूब और दालिन, इनका फर्क बता दीजिए। मग़दूब जिन पर जो जानते हैं और नहीं, ज़ालिमीन और जो दालीन जो जानते ही नहीं और पढ़ते भी नहीं, जो गुमराह हो गए। जी माशाल्लाह। ये जानते हुए भी उन्होंने इल्म नहीं हासिल किया। जी, और हम इससे कौन सी आदत सीखते हैं? एक अच्छी आदत हमने यहाँ भी सीखी थी, ये हमें दीन का सीखना चाहिए। पता है हमें दीन का इल्म जरूर सीखना चाहिए। कुरान को तर्जमे से सीखना, नमाज को तर्जमे से सीखना, और बुरे लोगों से दूर रहना, ठीक है। अब सूरह फातिहा, सूरतुल फातिहा का खुलासा। जी, अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सी आया मुबारक है?
ہدایت کی دعا یعنی اهدنا الصراط اهدنا المستقيم الصراط دعا المستقیم. مانگی ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ تیاری آپ لوگوں کی بھرپور ہے. چلیے اب آزان کی بات جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار کی تکرار. وہ اس آ کا گیا لڑکا. ترجمہ بتائیے گا. میں روٹی بنائی ہوئی اللہ کھانا سب سے گرم بڑا کر ہے. دو. اللہ بہت بڑا ہے یعنی سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ جی سب سے ماشاءاللہ. بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا. جی ماشاءاللہ. جی اس کے بعد ہم نے اس کی تکرار اشہد. ٹھیک ہے. اشہد اشہد اللہ الہ. اشہد کا مجھے جمع بتا دیجیے. اشہد میں اشہد. گواہی دیتا ہوں. اشہد جمع اس کی اشہادو. جی نشہد ماشاءاللہ. ان اور انا کا فرق بتائیے. ان کے انا کے بے شک. اللہ بے شک یا کے دونوں بے کا شک. مطلب کہ کیا آئے گا. ان کا بھی اور انا. جیسے دیکھیے اشہد اللہ الہ اور دیکھیے اشہد ان محمد. ٹھیک ہے دونوں میں کے ہی آئے گا. میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا میں گواہی دیتی ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ اللہ کے رسول ہیں. جی ماشاء بے اللہ. شک. حیا. اب آپ آگے دیکھیے حیا اس کا مطلب بتائیے. آؤ. آؤ آؤ الصلاۃ. الصلاۃ. نماز نماز کی طرف. کی طرف الفلاح. کی طرف جی کامیابی کامیابی. کی طرف فلاح. کامیابی کی طرف. فلاح جی کامیابی. جی ماشاء اللہ. اچھا جی اب مجھے بتائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یا نہ کریں, اس دعوت پر آئیں یا نہ, اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی کمی کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کے لیے ہمیں کون سا اس میں سے جملہ بتاتا ہے, اس طرف دلاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی ماشاء اللہ. ہم نے الہ کے بھی جی الحمدللہ ہم نے الہ کے بھی 3 مطلب سیکھے تھے. معانی یاد ہے کسی کو؟ الہ جس کے پالنے والا پرستش کی جائے, پرستش کی جائے, عبادت کی جائے جس کی, اور جی اس کی بڑائی بیان کی تھی. جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آذان کا خلاصہ. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. جی اب دیکھیے گا فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں. میم آپ کا شاید اسٹک ہو گیا. باقی لوگوں کو نظر آ رہی ہے میری اسکرین ویڈیو؟ جی 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 آ آپ آ رہی. ہاں جی جی آپ اپنے اینڈ پر چیک کر لیجیے. الصلاۃ خیر من النوم. اب آپ دیکھیے اس میں سے آپ اسم پہچان سکتے ہیں. جی الصلاۃ خیر اور خیر بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے. نیند سے. من سے نوم. الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے من النوم نیند سے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ کب پڑھی جاتے ہیں یہ والے جملے؟ کون سی فجر کے اذان ٹائم میں؟ فجر کی اذان. فجر کے وقت پڑھے جاتے ہیں. جی ماشاء اللہ. اچھا جی ہم نے آذان کے بارے میں ابھی پڑھا اور اب آپ دیکھیے اقامت کے اضافی الفاظ. حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے بعد جو ایک جملہ 2 بار بولا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. قد کے معنی بتائیے. تحقیق. قامتی کھڑی ہو گئی. صلاۃ نماز. کھڑی ہو گئی صلاۃ نماز. ہاں جی الحمدللہ. اب یہ کس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے؟ نمازیوں کے لیے جو مسجد میں ہیں. موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی وضو کر رہا ہے یا کوئی ذہن میں ہے تو ان مسجد کے سب اندر کی موجود دعا کے لوگوں لیے کے یہ لیے. ہوتا ہے کہ پہنچ جائیں اپنی جماعت کی والی جگہ پر. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جن لوگوں کے پیچھے شور ہے وہ ذرا اپنا مائک جلدی میوٹ کیا کیجیے. اچھا جی اور ہم نے دیکھے تھے وضو کے پہلے اور وضو کے بعد کے اذکار. جی وضو سے پہلے ہم نے پڑھا بسم اللہ. بسم اللہ کے ٹکڑے کیجیے. اس میں وہی با اور اسم یعنی نام سے اللہ اللہ کے. جی ماشاء اللہ. اب وضو کے بعد کی دعا دیکھ لیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے اب اس کا ترجمہ کیجیے, ٹرانسلیٹ کیجیے میرے ساتھ.
मैं गवाही अशहदु देती हूँ मैं मैं गवाही गवाही देती देती हूँ हूँ कि नहीं देता हूँ कि कोई कि मबूद कोई नहीं इला नहीं, इला कोई नहीं है कोई मबूद मबूद सिवाय इल्ला अल्लाह के। है कोई मगर मबूद जी सिवाय जी अल्लाह जी के जी के देखिए वो अकेला है, ला शरीका लह, वो अकेला है, ला नहीं शरीका नहीं, शरीक कोई शरीक लहू लाहू इसका अशहदु और मैं गवाही देता हूँ जी अन्ना माशाल्लाह के माशाल्लाह उसके बंदे मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हाँ जी वसल्लम जी अब रुक अब्दुहु जाइए उसके बंदे व रसूलहु और उसके रसूल हैं। जी जी माशाल्लाह। अब आप देखिए इसमें जो अजाफी एक बात बताई गई वो थी अब्दहु, ठीक है, अब्दुहु, ये क्यों कहा गया? अब्दुहु इसलिए कि इससे पहले जो उम्मतें थी उन्होंने अपने नबियों को अल्लाह बनाया अल्लाह था, का बेटा बना दिया अल्लाह था, ताला ने वजाहत की, उसकी नफी की है कि रसूल पाक शिर्क सल्लल्लाहु की अलैहि नफी वसल्लम की है, के बंदे फिर की नफी कर और दी गई। जी जी शिर्क की बिल्कुल। नफी की है। और वो कौन से तो पैगंबर हैं जिनके बारे में वो कहते हैं? हजरत ईसा जी 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 और हजरत माशाल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम, जी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत ईसा के लिए अल्लाह का बेटा। इसके लिए इस तरह हमने सीखा कि शिर्क की नफी कर दी गई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल भी हैं और बंदे भी हैं। जी अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। अच्छा जी, अल्लाहुम्मा इसके भी आपने टुकड़े नहीं करने, ठीक है, ये एक लफ्ज है, एक ये लफ्ज मुफस्सल, ठीक है, अल्लाहुम्मा ए एक अल्लाह मुफस्सल। ये जो आज ये जो इल्मी बना दे मुझे, इजअलनी अजअल और बना बना दे दे मुझे नी साफ मुझे रहने वालों में। खूब तौबा करने वाले मिन में से से, तौबीना खूब तौबा करने वालों में वजअलनी और बना वजअलनी दे और मुझे बना दे मिनल मुझे मिनल मुतत्तहिरीन मुतत्तहिरीन पाक साफ पूरा मुततहिरीन। रहने रहने वालों में से, वालों में पाक से। साफ रहने वालों में। जी, अब तवाबीन का वाहिद बता सकता है कोई मुझे? तवाब तवाब, तवाब तव्वाब। तव्वाब अब इसी तरह से खूब तौबा करने तौबा करने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा देखिए तौबा करने वाले। जमा की निशानी आ गई ना इसमें, यान जमा जी की जी निशानी आ गई। याद बिल्कुल इसी तरह सॉरी मुततहिरीन, इसमें भी जमा की निशानी, इसका वाहिद बताइए। या नून मुतताहिर, इसका मुतहर, मुतताहिर होगा और या नून की वजह से जमा हो गया। जी माशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो हमने वजू की अभी दुआ सीखी, हमने दुआ पढ़ी, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इसके बारे में? उनमें से जो वो सही तरह वुज़ू के करे आखिरी दरवाजे और उसके बाद ये दुआ जाते हैं और आप जिसमें से पढ़े चाहो तो वो दाखिल हो जन्नत के जाते हैं। 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। माशाल्लाह। और ये हमने कोर्स में साथ साथ हमें ये भी एक फायदा हुआ कि हमें ये सारी दुआएं याद भी हुई हैं, याद भी, और अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने इनको मुकम्मल सीखा है। अब हमें इनके मानी भी आते हैं और हमें पता चलता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान रब्बियल अजीम, रुकू की तस्बीह है। अब आप बताइए सुभाना पाक है, पाक है, रब्बी मेरा रब, मेरा रब वाला है। अजमत वाला है। रब या अजमत मेरा। वाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए हमने यहाँ पे 4 बातें सीखी हैं। कौन सी 4 बातें सीखी? हमने सीखा सुभाना पाक है, रब रबूबियत, और यहाँ से हमने सीखा मेरा अपनायत, ठीक है, और अजीम की हमने के लिए पाकी, रबूबियत, अपनायत और अजमत। आप दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज जरा कट रही थी तो मतलब, ठीक है, पाकी, रबूबियत, अपनायत और अजमत, ठीक है, रुकू की तस्बीह है ये। और इसमें हम देखिए, इसमें फिर अपनायत का भी इजहार हो रहा है ना। अब इसी तरह से जब हम रुकू से उठते हैं तो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब समिया याद आया कुछ? समिया, ये वही समिया है। समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, लिमन, ठीक है, उसकी जिसने, हमिदाहु, जरा इसके टुकड़े कीजिए। 2 हमीदा और हूँ, ठीक है। और जो इसी के रुकू से उठते हुए दूसरी तस्बीह है रब्बाना वलकल हम्द, ठीक है, रब्बाना बताइएगा जरा, रब्बाना ऐ हमारे रब। और हमने देखिए रब्बुना भी तो सीखा था ना। अब आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं।
रब्बाना और रब्बू रब्बाना ए हमारे रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह माशाल्लाह। वलका और और तेरे तेरे ही लिए। जी, तेरे ये जो ही हम लिए। हम जो टेबल सीखे ना वो भी साथ साथ अप्लाई होते हैं। अलहम हर किस्म की हर तारीफ, किस्म की तारीफ, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। शुक्र अल्लाह भी की सब। उसकी खास तारीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, रुकू से उठते हुए हमने एक बहुत प्यारी दुआ सीखी, और भी दुआएं हैं लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये बहुत प्यारी दुआ है। मिल समावाती व मिल अल अर्द। अब समावात मुझे बताइएगा ये वाहिद है या जमा है? जमा है। जमा। ठीक है। व मिल अल अर्द व मिल मा बैनहुमा, ये हमने नया लफ्ज़ सीखा था। ठीक है, हमने सीखा था हम, और फिर हमने सीखा उलाइका, इन दोनों के दरमियान में बैनहुमा, ये तस्निया का इशारा, ये हमने एक नई बात यहाँ सीखी थी। मिल आमाशता, अब शेता को देखिएगा जरा, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? शेता किसी फेल में हमने पढ़ा इसको, इससे मिलते जुलते। इंशाअल्लाह, अच्छा, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। शैया, ता, यही है। जैसे हम ता कहते हैं ना, ता फअलता, फालता फालता। जी जी माशाल्लाह। मिन शैइन बाद, ठीक है, आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर, और बढ़कर जो इसके दरमियान है, और बढ़कर वो तमाम चीजें, तू चाहे किसी चीज में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी दुआ है, बहुत प्यारी तस्बीह है। अच्छा जी, सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला। अब आप में से कोई मुझे बताए इसकी 4 बातें। सुभान पाक है, रब्बी, सब रब्बी मेरा रब, जब करेंगे उसकी बड़ाई है और सबसे आला, बुलंद है। और उसकी बुलंदी। ठीक है, पाकी, रबूबियत, अपनाइयत और बुलंदी। आसान लफ्जों में हम इसको इस तरह से कह दीजिए जी। अत्तहियात, आप इसका जरा कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए। अत्तहियातु सभी को इबादत लिल्लाही, अल्लाह ही के अल्लाह ही लिए के है। लिए है। हाँ जी, अल्लाह ही इसके के टुकड़े लिए कर सकते हैं? जी, अब इसके टुकड़े कर सकते हैं आप? लिल्लाही। ली और अल्लाह। ली और अल्लाह। जी माशाल्लाह। वस्सलातु, जी जी, अब बताते जाइए। और सभी बदनी बातें। बदनी बातें। और सभी बदनी बातें। मत तो ये बात, अब रुक जाइए, रुक जाइए। अब और सब सभी माली बात। माली बात जी। अब इनका हमने मफहूम भी तो सीखा था। अच्छा जी, अत्तहियात में कौली इबादतें, कौन कौन सी इबादतें आ जाएंगी इसमें? मतलब नसीहत करना किसी को, नमाज नमाज, नसीहत करना, और तबलीग करना, कुरान तकलीफ पाक करना। पढ़ना जी, हाँ जी, कुरान की तिलावत, कुरान पाक को समझ कर पढ़ना। ठीक है। और सलात, हाँ जी, अब इसमें से बताइए बदनी इबादतें कौन सी सीखी थी? नमाज, नमाज, रोजा, हज, तबलीग के लिए जाना, दावत और लोगों की मदद करना। दावत, ठीक है। अब तो ये बात पर आ नफ्सी जाइए। इखलास सिखाना, माली बातें मतलब अपना पैसा खर्च करना। ज़कात होती है, ज़कात हो गई, सदकात हो गए। ठीक है माशाल्लाह। और अच्छा दीन के लिए खातर जी। अब देखिए हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व आप पर सलाम। बरकातुहू। जी माशाल्लाह, सलामती हो और आप पर सलामती हो ए नबी अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी और आप पर जी, रहमतें हो अल्लाह की। और बरकतें। और बरकतें और हों आप और पे। बरकतें जी, हों आप पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, क्या पैगाम मिलता है इससे? सलामती हो गुलाम हो हम पर हम और पर अल्लाह के उन बंदों पर पर जो जो अल्लाह नेक के हैं। जो नेक नेक बंदे हैं। हाँ जो जी, और नेक इससे हैं। में क्या पैगाम मिलता है कि हम भी पूरी तरह नेक और साले बनने की कोशिश करें। बिल्कुल। आमीन। ठीक है जी माशाल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसको हम देख मैं चुके हैं। गवाही देती हूँ जी जी जी। नहीं अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह माबूद के नहीं, सिवा और कोई मैं माबूद गवाही नहीं, देती हूँ और कि मैं मोहम्मद गवाही देती हूँ सल्लल्लाहु अल्लाह के मोहम्मद बंदे अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि बंदे वसल्लम और अल्लाह रसूल के हैं। बंदे और रसूल हैं। अब हम आ जाते हैं दुरूद पर। ठीक है। अल्लाहुम्मा, ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसके आपने टुकड़े भी करने, एक पूरा वर्ड है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इसे यूज किया जाता है। सल्ली, जरा मुझे इसका पहले रहमत मतलब भेज। नहीं, वो सल्ली तो मैंने अला जी, मैंने रहमत अला तो नहीं भेज। बोला। आप इसका सिर्फ सल्ली का बताइए। रहमत बेच, रहमत भेज।
रहमत। थोड़ा सा और सोचिए। दो नमाज मानी तो है। नमाज के लिए भी नमाज पढ़, रात ठीक के है, लिए भी नमाज पढ़, ठीक है। सल्ली। जब इसके साथ हर्फ जर आएगा तो फिर हम कहेंगे सल्ली अला रहमत भेज मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। किस पे भेज? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जी, उनकी आल पर, आल पर। यानी जी, उनकी अब खानदान करने पर। वाले उनके खानदान पर, खानदान पर या फिर जो उनकी अतबा करने खानदान अतात करने वालों पर भी। जी, तो माशाल्लाह। वहाँ में दो चीजें थी, खानदान वाले और अतात करने वाले। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उम्मत कमा अतात कमा करने भी जी ठीक है, कमा भी एक वर्ड है, इसके आपने टुकड़े नहीं करने। स्वल्ली था, आपने कहा स्वल्लई था, ठीक है, ये उसी तरह से है। अला इब्राहिम और अला अली इब्राहिम, ये उसी तरह से जैसे रहमत भेजी तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बेशक तू हमीदुन, बताइएगा, हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीद, बुजुर्गी वाला, बुजुर्गी वाला, ठीक है, माशाल्लाह। अब देखिएगा इसी तरह से है, इसमें सिर्फ बारिक, बारिक का बता दीजिए, बारिक। बरकत अता बारिक फरमा, बरकत बरकत दे, बरकत और दे। जब हम कहेंगे बारकता, बरकत अता की है, बरकत अता की तूने। तूने। जी माशाल्लाह। और हमने ये बहुत प्यारी दुआ सीखी थी नमाज के बाद की, रब्बाना आतिना, रब्बाना का एक दफा फिर जरा कर ले रिपीट। ए हमारे रब, और रब्बुना, रब्बा हमारे यानी रब, है हमारे रब, रब। हमारे। ठीक है, आतिना, आतिना के टुकड़े कीजिए। आती दे ना दे हमें, ठीक है, अच्छा जी। अब दुनिया की हसनात बताइएगा, दुनिया की दुनिया हसनात कौन सी है? भलाई, जी, दुनिया की भलाई, सेहत, इज्जत, वकार, मालो दौलत, औलाद, औलाद की फरावानी, घर, गाड़ी, सही बच्चे, अकीदा, नेक दुनिया की। अमाल। जी जी बिल्कुल, ये दुनिया के हसनात है। अच्छा जी, वाकिना, इसके टुकड़े कीजिए। और बचा वाह और हमें, की, वाह और बचा। की, और बचा, वाकिना, की होता है वाह बचा, और की, जी बचा ना हमें, और ला हमें। ठीक है, माशाल्लाह। इसमें बहुत सारे इसम और बहुत सारे मुअन्नस भी हैं। अद्दुनिया हसना, आखिरा, अन्नार, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अच्छा जी, इसी तरह से हमने सीखे नमाज के बाद पढ़ने वाली एक और अहम दुआ, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तर्जुमा कीजिएगा मेरे साथ। ए अल्लाह मदद फरमा मेरी मदद तेरी याद मेरी करने तेरी पर और याद शुक्र करने और पर तेरा और शुक्र तेरी अच्छी करने इबादत पर, करने तेरी पर। अच्छी इबादत करने पर। हाँ, अब आइन की तरह आइन बताइएगा, आइन का मतलब क्या है? आइन मदद करना, मदद फरमा, फरमा, मेरी और जिक्री का याद जिक्र करने करने की, पर। याद करना, तुम्हारा, जी माशाल्लाह। व हुस्नि इबादतिक, अच्छी और इबादत अच्छी की, इबादत अच्छी करने इबादत, की। इबादत, अच्छी का इबादत। तेरी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरी अच्छी बात। जी, आप में से मुझे कोई ये जरा पूरी एक पढ़ के बताएं, दुआ, दुआ को पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व हुस्नी इबादतिक। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी। और आपने ये जो जिक्र, ये देखा था आपने कि ये हमने ज़ाकरा का जो टेबल भी किया था, ये वहीं से रिपीट हो रहे हैं ना जी, जी। ज़ाकरा जिक्र, शुक्र, हाँ हाँ जी। और जिक्र जो हमने, हाँ जी, इसका जो हमने मस्कर किया था, ठीक है। चलिए जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपको सिस्टर सना आमीन। करवाएंगी। हाँ जी।